बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamu alaikum, my dear student of Bright Career School. Today I will tell you about the revision of second semester final term. Okay, I have made you understood about the next semester. Now come to the another semester. अब हम next semester में final semester में आपके revision करेंगे. Now look at over here. Unit number 19, chapter number 48, types of sentences. Exercise number 1 and 2. Another. Unit number 20, chapter number 49, analysis of sentences. Another sentences, passive. हमें passive के ये सारा हमारा आज का रिवीजन होगा. अब हम स्टार्ट लेते हैं chapter number 48. What you will do in this exercise, combine each set of simple sentences into one compound sentence. आपको क्या करना होगा? आपको simple sentence को compound sentence से join करना होगा. I made you understand about the compound sentence. What are the compound sentence? I made you understand कि compound sentences क्या होते हैं जिनमें हमें coordinating sentences मिलते हैं. These are the compound sentences. Must work hard. You must work hard. It is absolutely simple sentence. Over here you may see that subject, correct, verb, modal verb, everything is available in this sentence. So this is simple sentence. What we will do, we will join it with the compound sentence. How? We will put conjunctions of compound, coordinating conjunction. You must work hard, otherwise you will not win. What I did, I joined two sentences by compound sentence, or you may say the coordinating sentences as well. I made you understand that fanboys. What are the fanboys? These are the coordinating conjunction. हमारे जो fanboys होते हैं वो coordinating conjunctions होते हैं. I made you understand this thing many times. ये मैंने आपको बहुत दफ़ा समझाया, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ fanboys ही coordinating conjunctions हों. उसके अलावा कुछ और conjunctions भी coordinating conjunctions हो सकते हैं. ठीक है? Go to market. Correct. You may see this sentence. I. Subject, go verb, market object. Okay, it is absolutely simple sentence. Now what I will do, I will join this sentence by the compound sentence. अब मुझे क्या करना है, मुझे simple sentence को एक compound sentence से join करना है. अब वो कैसे करना है? compound sentences हम सिर्फ coordinating conjunctions जो होते हैं, these are the compound sentences. अब ये देखिए, I go to market for purchasing your gift. मैं मार्केट जाती हूँ तुम्हारा गिफ्ट खरीदने के लिए. करेक्ट. He has books. उसके पास किताबें हैं. He. Subject has. Helping verb. Books. Object. करेक्ट. ये एक हमें कंप्लीट सेंस दे रहा है. ही हैज़ बुक्स, यानी कि एक पूरी कंप्लीट बात है जो कि हमारी समझ में आ रही है. तो जो हमें पूरा कंप्लीट सेंस देता है, जिससे हमें किसी चीज़ की नीड नहीं होती, वो हमारा सिंपल सेंटेंस होता है.
तो बेटा ये हमारा सिंपल सेंटेंस है, ही हैज़ बुक। अब हमें क्या करना है, हमें इसमें कुछ ऐसा एडिशन करना है जिसके बाद ये हमारा कंपाउंड सेंटेंस है ज्वाइंट हो जाए। तो अब हम इसे कंपाउंड सेंटेंस से कैसे ज्वाइन करेंगे, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस ऐड करके। लुक इट ओवर हियर केयरफुली अगेन, ही हैज़ बुक्स, उसके पास किताबें हैं, बट ही डजंट स्टडी, लेकिन वो पढ़ता नहीं है। अब यहाँ देखिए बट क्या है, व्हाट इज बट, दिस इज बिलोंग टू फैन बॉयज एज वेल, ये फैन बॉयज से बिलोंग करता है, प्लस दिस इज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। हमेशा याद रखिएगा कि जब हमें सिंपल को कंपाउंड से ज्वाइन करना है तो सिर्फ हमारे पास एक ही वे ऑफ होता है कि हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को ऐड करके आगे कोई बात करते हैं, फिर उसके बाद वो हमारा सिंपल कोऑर्डिनेटिंग से ज्वाइंट हो जाता है। He loves to study, उसे पढ़ने से प्यार है, ठीक है। अब मुझे दोबारा ये एक सिंपल सेंटेंस मुझे मिल गया, जैसे कि शी मुझे मिल गया, सब्जेक्ट है, लव टू मिल गया, वर्ब है, स्टडी मिल गया, ऑब्जेक्ट हमारा हो गया। लेकिन अब हमें क्या चाहिए कि हमें दोबारा इसको ज्वाइन करना है कंपाउंड सेंटेंस से। शी लव्स टू स्टडी एंड लव्स टू डोमेस्टिक वर्क, उसे तालीम से प्यार है और उसे घर के काम से प्यार है। तो हमें सिंपल सेंटेंस को जब हमें ज्वाइन करना होता है तो हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस लगा देते हैं, जिसके बाद सिंपल एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन it can become easily. Now come to the exercise number 2, unit number 19, chapter number 48, exercise number 2. In this exercise what you will do, say whether the following sentences are simple, compound, double or multiple or complex. Page number 233, page number 233, करेक्ट, पेज नंबर 233। इसमें हमें क्या करना है, व्हाट वी विल डू इन दिस एक्सरसाइज, वी विल टेल विच वन इज सिंपल, विच वन इज कंपाउंड एंड विच वन इज कॉम्प्लेक्स। ओके, हाउ वी विल रिकॉग्नाइज, हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा सिंपल है। बेटा सिंपल की रिकॉग्नाइज हम ऐसे करेंगे जिसमें हमें एक सब्जेक्ट मिलेगा, एक वर्ब मिलेगा और ऑब्जेक्ट होना नीड नहीं है, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई इशू नहीं है। आई स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलती हूँ। लुक एट ओवर हियर केयरफुली, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, करेक्ट। ये हमारा सेंटेंस सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट फिनिश्ड अप हो गया है। अब ये हमें पूरा कंप्लीट सेंस दे रहा है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि अगर हम एडिशन करें तो ही बात समझ जाए, नहीं, ये हमें एक पूरा कंप्लीट सेंस दे रहा है, जिसकी बदौलत हमें पता चल गया कि ये पूरी बात है। जब हमें सब्जेक्ट से लेके ऑब्जेक्ट तक, या अगर ऑब्जेक्ट ना भी हो, शी स्लिप्स, वो सोती है। अब ये देखिए इसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है, इसमें हमें सब्जेक्ट एंड वर्ब बोथ आर वी कैन गेट इन दिस सेंटेंसेस, बट इट इज गिवन एब्सोल्युटली फुल मीनिंग, ये हमें पूरा कंप्लीट सेंस दे रहा है। तो जब हमें किसी सेंटेंस में पूरा कंप्लीट सेंस मिल जाता है वो हमारा सिंपल सेंटेंस होता है। दोबारा मैं आपको बता रही हूँ, याद रखिएगा कि जिस सेंटेंस में पूरी बात समझ में आ जाती है वो हमारा सिंपल सेंटेंस होता है, ठीक है। तो ये हमारे कौन से सेंटेंस हुए, सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंसेस, बर्ड्स फ्लाई। देखिएगा जो मैंने आप लोगों के लिए एग्जाम्पल लिखी है, आई स्पीक इंग्लिश, ये हमें पूरी कंप्लीट सेंस दे रहा है। तो ये हमारा क्या है, सिंपल सेंटेंस। शी स्लिप्स, वो सोती है, इसमें भी हमें पूरी कंप्लीट बात समझ में आ रही है, मतलब ऐसा नहीं कि आधी बात है कि और कुछ बोलेंगे तो ही समझ आएगा, नहीं, ये भी हमें पूरा कंप्लीट सेंस दे रहा है। तो ये भी हमारा क्या है, सिंपल सेंटेंस। बर्ड्स फ्लाई, परिंदे उड़ते हैं, तो ये भी बात पूरी तरह से अंडरस्टूड है कि हाँ परिंदे उड़ते हैं, कुछ मतलब मजीद कुछ कहने की इसमें नीड नहीं है। बॉयज प्ले क्रिकेट, लड़के क्रिकेट खेलते हैं, इट इज एब्सोल्युटली अंडरस्टूड एज वेल। नाउ अनदर एग्जांपल, ही स्लिप्स, ही वीप्स, वो रोता है, इट इज ऑल्सो अंडरस्टूड एज वेल, करेक्ट। तो हमारे सिंपल सेंटेंस वो होते हैं जिसमें हमें पूरा कंप्लीट सेंस मिल जाता है, कोई इनकम्प्लीट बात नहीं होती, पूरी कंप्लीट बात होती है। एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है, जैसे कि इसमें एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, पूरा कंप्लीट सेंस है, कोई नीड नहीं है। तो ये हमारा सिंपल सेंटेंस है। अगर सब्जेक्ट, अब जैसे इसमें देखिए कि सब्जेक्ट भी है,
वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी है, इसमें भी है, सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी है, तो ये भी सही है। अगर यहाँ भी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट भी मिल रहा है तो भी आपका ये सिंपल सेंटेंस ही है। ठीक है बेटा। कंपाउंड सेंटेंसेस में क्या होता है, पहले हमें एक सेंटेंस मिलता है जिसके अंदर हमें एक कंप्लीट बात समझ आ रही होती है। आई लाइक टू स्टडी, ठीक है, मैंने यहाँ तक बात लिखी, आई लाइक टू स्टडी, एक पूरी हमें कंप्लीट सेंस मिल रहा है, हमें इसके एडिशन की नीड नहीं है। फिर उसके बाद इसमें हमें फैन वॉइस चाहिए होते हैं। व्हाट आर दी फैन वॉइस? दीज आर दी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। अब हमें क्या करना है कि हमें इसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस मिल जाए, तो उसका मतलब होगा ये कंपाउंड है। आई लाइक टू स्टडी। अब यहाँ गौर से देखिएगा, आई लाइक टू स्टडी, पूरी एक यहाँ तक बात कंप्लीट सेंस मिल गया, पूरा हमारा कंप्लीट सेंस है। उसके बाद जो हमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस मिल जाए, अब ये देखिए बट क्या है, दिस इज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। फिर उसके बाद जो मिले वो भी कंप्लीट सेंस हो। बट आई डोंट लाइक टू गो टू स्कूल, मुझे पढ़ाई करना पसंद है लेकिन मुझे स्कूल जाना पसंद नहीं। यहाँ इसका ये है कि हमें यहाँ पे एक पूरा कंप्लीट सेंस मिलेगा, उसके बाद मस्ट हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ही होना चाहिए। He eats healthy food, वो हेल्दी फूड खाता है, ठीक है, एक कंप्लीट सेंस मिल गया आपको, पूरा एक कंप्लीट सेंस है। अब इसके बाद हमें क्या, इसमें भी हमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस चाहिए। अगर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है तो फिर हमें पता चलेगा कि ये कंपाउंड सेंटेंस है। ही ईट्स हेल्दी फूड, ईट्स हेल्दी फूड, वो हेल्दी फूड खाता है। अब ये देखिए फोर क्या है, व्हाट इज फोर? डेफिनेटली इट इज बिलोंग टू कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ये हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। फॉर हिज गुड हेल्थ, उसकी अच्छी सेहत के लिए। तो इसमें अगर आपको रिकॉग्नाइज करना है कि कोऑर्डिनेटिंग कंपाउंड सेंटेंस कौन सा है, तो पहले आप एक चीज़ को फोकस कीजिएगा कि जो पहले हमें बात मिल रही है, एक मतलब एक सेंटेंस है जो पूरा कंप्लीट मीनिंग्स दे रहा है, ठीक है, उसके बाद नेसेसरी है कि उसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ही हो। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बाद जो भी दूसरा सेंटेंस है वो भी हमें कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, इट मीन्स इट इज बिलोंग टू कंपाउंड सेंटेंस। करेक्ट। हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कि हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में पहले जो हमें सेंटेंस मिलेगा वो हमें फुल मीनिंग्स नहीं देगा, बिल्कुल भी उसमें जो बात होगी उसमें फुल मीनिंग्स नहीं होगी। आई टीच, मैंने आपसे कहा आई टीच, मैं पढ़ाती हूँ, तो डेफिनेटली आप पूछेंगे कि मिस आप कहाँ पढ़ाती हैं, क्या पढ़ाती हैं, क्यों पढ़ाती हैं, तो ये फुल मीनिंग नहीं दे रहा, ठीक है। पहले तो आप इसको इस तरह से रिकॉग्नाइज करेंगे कि उसमें जो एक सेंटेंस होगा वो हमें कंप्लीट सेंस नहीं देगा। जैसे कि कंपाउंड सेंटेंस में जो हमें एक सेंटेंस पहले मिल रहा था वो हमें फुल मीनिंग दे रहा था, लेकिन इसका फर्स्ट वन सेंटेंस हमें फुल मीनिंग नहीं देगा, आई टीच, ठीक है। फिर उसके बाद हमें जो मिलेगा कंजंक्शंस वो हमारा सबऑर्डिनेटिंग होगा। आई टीच, मैं पढ़ाती हूँ, बिकॉज आई लाइक टू टीच, क्योंकि मुझे पढ़ाना पसंद है। अब यहाँ फोकस कीजिए बिकॉज, बिकॉज कौन सा कंजंक्शन है? बिकॉज हमारा सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, इट इज बिलोंग टू सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है। तो हमें यहाँ कैसे रिकॉग्नाइज करना है कि एक हमें कंप्लीट सेंस नहीं मिलेगा, और उसके बाद हमें इसकी दूसरी जो कंडीशन है वो ये है कि सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन मिलेगा, फिर आगे बात होगी। अच्छा, इसकी दूसरा ये भी है कि ज़रूरी नहीं कि हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से ही कॉम्प्लेक्स को पहचानेंगे, इसमें हमें रिलेटिव प्रोनाउन भी मिलेंगे। रिलेटिव प्रोनाउन, who, which, when, where। who का मतलब होता है कौन, which का मतलब कौन सा, when का मतलब कब, where का मतलब
कहाँ। लेकिन जब ये रिलेटिव प्रोनाउंस बन जाते हैं ना तो फिर इनके मीनिंग भी चेंज हो जाते हैं। अब ये हु का मतलब होता है जो, विच का भी मतलब जो, व्हेन का मतलब कब, और वेयर का मतलब जहाँ। जैसे कि अब मैं कहूँ इट इज़ द क्लास, ये वो क्लास है, मैं इतनी बात कह के चुप हो जाऊं कि ये वो क्लास है, इट इज़ द क्लास, तो जाहिर है ये इनकम्प्लीट बात है, एब्सोल्युटली इनकम्प्लीट सेंस है। आपकी समझ में कुछ भी नहीं आएगा कि मिस ने क्या कहा, मिस बस ये कह के चुप हो गई ये वो क्लास है। तो अगर मैं कहूँ इट इज़ द क्लास वेयर वी स्टडी, ये वो क्लास है जहां हम पढ़ते हैं। अब यहाँ देखिएगा, पहले एक बात हो इट इज़ द क्लास, फिर उसके बाद हमें मिला रिलेटिव प्रोनाउन, फिर पूरी बात हो गई वेयर वी स्टडी। तो आपकी समझ में आया पूरा सेंटेंस। अगर मैं इतनी बात कह के चुप हो जाऊं तो आपकी कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अब आप इसको इस तरह से रिकॉग्नाइज करेंगे कि इसमें या तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होंगे आधी बात के बाद, या फिर हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन होंगे। अब दूसरी बात देखिए, शी इज़ द गर्ल, ये वो लड़की है, बस मैंने इतना कहा और चुप हो गई, ये वो लड़की है, तो जाहिर है आपकी तो समझ में नहीं आएगा, ये तो इनकम्प्लीट है, कौन लड़की है क्या है, मतलब पूरी बात तो बताइए। अब फिर मैं आगे कहूँ शी इज़ द गर्ल, ये वो लड़की है, इज़ माई स्टूडेंट, ये वो लड़की है जो मेरी स्टूडेंट है। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ हमें क्या मिला, इनकम्प्लीट सेंस, ठीक है। फिर उसके बाद हमें मिले रिलेटिव प्रोनाउन, फिर पूरी बात हो गई हु इज़ माई स्टूडेंट, ये वो लड़की है जो मेरी स्टूडेंट है। तब आप आराम से पहचान लेंगे कि हाँ भाई ये हमारा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। दोबारा मैं आप लोगों के रिवीजन के लिए बता रही हूँ कि सिंपल सेंटेंस को हम इस तरीके से रिकॉग्नाइज करेंगे कि उसमें सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा, पूरी कंप्लीट बात होगी, वर्ब ऑब्जेक्ट, करेक्ट, और पूरा कंप्लीट सेंस है। तो ये हमारा कौन सा हुआ, सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस। अब हम बात करते हैं कंपाउंड की। उसके अंदर हमें पहले एक पूरी कंप्लीट बात मिलेगी, फिर उसके बाद हमें कोऑर्डिनेटिंग मिलेगा। ये देखिएगा, शी डज जॉब, वो नौकरी करती है, पूरी कंप्लीट बात है, पूरा आपको कंप्लीट सेंस मिल रहा है, शी डज जॉब, ठीक है, वो जॉब करती है, सही है। फिर उसके बाद हमें क्या मिला, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, शी डज जॉब बट शी डजंट हेल्प अदर्स, वो नौकरी करती है लेकिन वो दूसरों की मदद नहीं करती, ठीक है। तो यहाँ हमें पहले कंप्लीट सेंस मिल गया, फिर उसके बाद कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन मिला, फिर जो दूसरी बात मिली वो भी कंप्लीट सेंस था। तो ये हमारा कौन सा हुआ, कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की, कि हमें पहले उसमें या तो रिलेटिव प्रोनाउन मिलेंगे या फिर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन मिलेंगे। हियर हमें कॉम्प्लेक्स को कैसे रिकॉग्नाइज करना है कि जो हमें पहले एक सेंटेंस मिलेगा वो इनकम्प्लीट सेंस होगा, ही टीचेस, वो पढ़ाता है, ये देखिएगा इनकम्प्लीट है, ही टीचेस व्हाट, वेयर, व्हेन, करेक्ट, ही टीचेस बिकॉज ही लाइक्स टू टीच। अब यहाँ देखिए, पहले इनकम्प्लीट सेंस मिला, फिर उसके बाद हमें इनकम्प्लीट सेंस मिलने के बाद सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन मिला, फिर उसके बाद ही लाइक्स टू टीच, एक कंप्लीट सेंस मिल गया। तो ये हमारा कौन सा हुआ, कॉम्प्लेक्स। और दूसरे कॉम्प्लेक्स की रिकॉग्नाइज ऐसी है कि ही इज़ द बॉय, इसमें भी पहले आपको एक सेंटेंस इनकम्प्लीट सेंटेंस मिलेगा, फिर उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन मिलेंगे, हु इज़ माई ब्रदर, ये वो लड़का है। अगर मैं सिर्फ ये कह के चुप हो जाऊं कि ही इज़ द बॉय, ये वो लड़का है, डेफिनेटली यू विल आस्क कौन लड़का, मिस क्या लड़का। तो अगर मैं पूरी बात कहूँ ही इज़ द बॉय, ये वो लड़का, हु इज़ माई ब्रदर, तब आपकी बात समझ में आएगी, ठीक है बेटा। तो हम इस तरह सिंपल को ऐसे रिकॉग्नाइज करेंगे कि इसके अंदर हमें सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट मिलेगा, पूरा कंप्लीट सेंस होगा। और हम अब बात करते हैं कंपाउंड की। कंपाउंड में पहले हमें एक कंप्लीट सेंस मिलेगा, पहले हमें क्या मिलेगा, एक पूरा कंप्लीट सेंस, फिर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, फिर उसके बाद होगा वो भी पूरा एक कंप्लीट सेंस मिलेगा। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स की। कॉम्प्लेक्स में पहले हमें इनकम्प्लीट सेंस मिलेगा, यानी कि जो भी बात हो रही होगी वो नहीं समझ आएगी जब तक पूरी बात ना हो जाए, पूरा इनकम्प्लीट। ही टीचेस व्हाट, वो पढ़ाता है, वो क्या पढ़ाता है, कहाँ पढ़ाता है, कैसे पढ़ाता है, इनकम्प्लीट है, ठीक है। फिर उसके बाद है बिकॉज ही लाइक्स टू टीच, वो पढ़ाता है क्योंकि उसे पढ़ाना पसंद है। अब ये बात पूरी हुई और उससे पहले क्या था, सबऑर्डिनेटिंग।
ही इज द बॉय, ये वो लड़का है। अब यहाँ हमें देखिए क्या मिला, रिलेटिव प्रोनाउन हु इज माई ब्रदर, ये वो लड़का है जो मेरा भाई है। ठीक, मैं सब वो असेसमेंट समझा दूँ? ओके बेटा, आप लोगों को पैसिव का मैंने पहले भी समझा दिया था, एक आध एग्जाम्पल और दे देती हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव, नमाज हैज बीन परफॉर्म्ड बाय हर, करेक्ट। व्हाट वी विल डू, इसमें भी हमने क्या किया, हमने रिप्लेस कर लिया सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की तरह। एंड आई मेड यू अंडरस्टैंड अबाउट द पैसिव, वी यूज थर्ड फॉर्म whether we make the passive of present, past and future, we just use the third form of verb. Understood? Now come to the assessment. Okay class, look it over here, assessment number 1. Look it very carefully. What you will do, you will solve this assessment. Now fill in the blanks. Dash is used for past. Dash is used for past. You may see the option of this. First one option is was, second is, third is will, and fourth is have. Okay, the word alas is used to express dash, pleasure, conversation, sadness, express. Third, they are more rich, dash us. First option is but, second is if, third is or, and fourth is then. Now, fourth, she sleeps. The verb is dash, transitive, intransitive, none of this. Or for example is close. Yesterday she went to market and dash mobile, purchase, purchasing, purchase, none of this. Now look it over here. Write down the write down the definition of coordinating and subordinating with example. Point out the conjunctions in the following sentences and state whether they are coordinating and subordinating. Catch me if you can. We can travel. We can travel by land or water. Third, you will be late unless you hurry. 4. He deserved to succeed, for he worked hard. Correct. Write down the definition of conjunctions. Use these conjunctions in complete sentences. Any 4. Either or, if, while, until, though, where. Write down the definition of interjection. Fill in the blanks with suitable interjection. Dash, you have done well. Dash, you have stepped on my foot. Write down the definition of sentences. Which of the following groups of words are sentences? On the desk, fire burns, the express bus, the wind is cold. Write down the definition of complement and write its 5 examples. Combine each set of simple sentences into one compound sentences. Noman bought some new shoes. He wore them to a party. You must work hard. You will not win. We can go to see a movie. We can eat out. Okay. Say whether the following sentences are simple, compound, double or multiple or complex.
I agree to your proposal, for I think them reasonable. People who eat too much die early. Convert into passive. I have eaten food. We will have performed the namaz. Girls had applied makeup. Correct. Okay. Write a message to your parents telling them that you will be late today. Correct. Write your favorite story with moral. Correct. Write down an essay on anyone. Write down the essay which topic you like most. You may write your favorite essay and your favorite story, but with moral as well. Correct. Gotten? Okay class, I made you understand about the assessment. You will be given this assessment and solve this assessment yourself at your home. Now I want to make you to give home task. What you will do, I made you understand unit number 19, chapter number 48. Correct. Create some questions yourself. Develop exercise. Self-develop exercise. आपको मैंने ये यूनिट नंबर 19 चैप्टर नंबर 48 समझाया है. आपको क्या करना है, सेल्फ डेवलप मीन्स आपको खुद से कुछ है ना सेंटेंसेस क्रिएट करने हैं जो इस एक्सरसाइज से रिलेटेड हो. ठीक है क्लास? ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़. इंशाल्लाह वी विल मीट अगेन. टेक केयर. ठीक है. Okay class, I gave you the assessment, but I want to make you understand that how to solve it. Now look at over here, this one fill in the blanks. He weeps. The verb is dash. वो रोता है. ये verb है transitive, intransitive, none of this. I made you understand about the transitive and intransitive. Transitive को object की ज़रूरत होती है and intransitive doesn't need object. Correct. He weeps. वो रोता है. तो you may see the subject and verb. It is absolutely understood. वो रोता है. It doesn't need object. So it means that it is belong to intransitive. Now look at over here. Yesterday I was tired. I dash early. कल मैं थकी हुई थी, मैं जल्दी सो गई. तो अब हमें तीनों में से एक ऑप्शन इसमें लगाना है. स्लिप, स्लीपिंग, स्लैप्ड. अब देखिए, इसको गौर से देखिएगा. yesterday इट मीन्स इट अबाउट द पास्ट. ये माजी की बात हो रही है, तो स्लिप तो इसमें आ नहीं सकता क्योंकि वो तो प्रेजेंट के लिए होता है. स्लीपिंग ये कंटिन्यूस के लिए होता है. मैंने ये नहीं कहा कि मैं सो रही थी. yesterday I was tired. I slept. I dash early. तो इट्स अबाउट दिस स्लीपिंग. ये कंटिन्यूस के लिए होता है. सो डेफिनेटली इसमें स्लैप्ड आएगा. आई मेड यू अंडरस्टैंड इन फिजिकल क्लास. जिन जुमलों के आखिर में अलीफ छोटी है या बड़ी आता है, इट इज़ बिलोंग टू पास्ट इंडेफिनिट. करेक्ट. तो इसके मैं जल्दी सोई. तो अब आप इसमें देखिए, इसके जुमले के आखिर में क्या आ रहा है, छोटी है. तो इसमें हम स्लैप्ड लगाएंगे. यूज फॉर डेश, प्लेजर, सैड, कन्वर्जेशन. वर्ड हुर्रे जो यूज़ होता है. प्लेजर मीन्स खुशी, सैड मीन्स दुख, कन्वर्जेशन मीन्स कम्युनिकेशन, बातचीत.
I made you understand about in physical class that hooray, I have won the match, hooray, I have passed in my exam. Definitely it's about the pleasure. ये खुशी की बात है कि हुर्रे हम खुशी के लिए करते हैं. तो इसमें हम सैड या कन्वर्सेशन तो नहीं कर सकते ना, इसमें कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, इसमें कोई दुख की बात नहीं हो रही है. इट्स अबाउट हैप्पीनेस, इट मीन्स प्लेजर. सो व्हाट वी विल पुट इन इट, प्लेजर. ओके. होम टास्क वो वाला मिस आप डिस्कनेक्ट कर देंगी. ओके. ओके क्लास, नाउ आई वांट टू गिव यू डायरी होम टास्क. व्हाट यू विल डू एट योर होम, home task. I made you understand unit number 19, chapter number 48. Create some exercises, some sentences yourself. Self-develop exercise. Self-develop exercise means create some sentences by yourself. I made you understand about the simple sentence and compound sentence. Join simple sentence to compound sentence yourself. Create some sentences. And what you will do, another exercise number 2, create some sentences, simple sentence, compound sentence and complex sentence. Correct? Do this exercise yourself so that your concept absolutely will be clear automatically. Okay beta, I made you understand about the whole exercises. I hope you have gotten all, and if you have little bit confusion, ask me. I made you understand again. Okay class, Allah Hafiz, take care. Inshallah we will meet again.